بہت جلد یہ منصوبہ مکمل طور پر یہ آپریشنل ہوگا اور پاکستان کی جو اس وقت جو معیشت ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پن بجلی سے 720 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو مہیا ہوگی. اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پن بجلی یہ تھرمل بجلی کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے اور ہر سال جو اس کا جو سرمایہ کاری کا حجم کم ہوتا جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی سے تو بجلی کی قیمت اسی تناسب سے ہر سال کم ہوتی جاتی ہے تابقتے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمام قرض کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بجلی کی قیمت شاید 1 روپے یا ایم آئی رائٹ اور ناٹ سراج صاحب کتنی 3 روپے پر یونٹ اس کی قیمت ہو جاتی ہے. یہ جس طرح میں نے عرض کہا کہ منافع سے قرضہ اتار کر تو اس کی قیمت الٹیمیٹلی 2-3 روپے ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی پولوشن کا ایشو نہیں ہے, کوئی کلائمیٹ کے اندر کوئی خدا نخواستہ آلودگی کا ایشو نہیں ہے, بہت ہی کلین یہ انرجی ہے. میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں, میں میاں نواز شریف صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں, میں تھری گارجز کے چیئرمین وو اور ان کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. یہاں پر کروٹ میں ہمارے چینی جو انجینئرز ہیں, سٹاف ممبرز ہیں, چینی ورکرز جو ہیں, پاکستانی انجینئرز, سٹاف ورکرز اور تمام اس علاقے کے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں منسٹر آف پاور ان کا شکر گزار ہوں, سیکرٹری لنگڑیال صاحب کا شکر گزار ہوں, اور جناب احسن اقبال صاحب ہمارے جو اکنامک افیئرس کے ایک آئنسٹائن ہیں ان کا شکر گزار ہوں, اور تمام پوری حکومت کا کہ جنہوں نے یہ اس وقت پوری دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ 720 میگا واٹ کا جلد سے جلد یہ آپریشن ہو جائے اور پاکستان کی ایک سستی اور کلین بجلی, صاف بجلی مہیا کرنے کے لیے بالکل یہ تیار ہو جائے. اس کے لیے میں نے آج چینی جو یہاں پہ پاکستان کے جو ہیڈ ہیں ان سے بات کی, اور انہوں نے چیئرمین ہو سے بات کی کہ جب تک سی او ڈی مکمل نہیں ہو جاتا, ہاؤ ڈو یو سی او ڈی کمرشل آپریشن, ڈی اسٹینڈ فار یس کمرشل آپریشن ڈیٹ سی او ڈی, جب تک وہ اچیو نہیں ہو جاتی جو کہ ابھی مستقبل قریب میں ہوگی, اس وقت تک یہ 720 میگا واٹ جو 4 ٹربائنوں نے یہاں پر جنریٹ کرنا ہے, 4 ٹربائن لگی ہوئی ہیں, یہ 720 میگا واٹ اس وقت تک یہ نیشنل گرڈ کو فری دیں, یعنی کوئی ہم سے اس کی قیمت وصول نہ کریں. میں چیئرمین وو کا دل کی گہرائیوں سے جو تھری گارجز کے جو چیئرمین ہیں جو بیٹھے ہیں بیجنگ میں اس وقت تھرو زوم, ان کا بے حد شکر گزار ہوں, ان کی ٹیم کا, اور یہاں پر پاکستان میں ان کی جو ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست کو اور اس طریقے سے نیٹ تقریباً 4 ارب روپے کی بچت پاکستان کے خزانے کو ہوگی انشاءاللہ, اور میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ 4 ارب روپے آج جب ہم ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے, تو یہ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو بجلی پیدا ہونی ہے, اور سی او ڈی تک یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سی او ڈی تک اگر یہ ہمیشہ کے لیے فری کرتے ہیں تو کیا کہنے, لیکن ہمیں زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے. ان کو ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ سی او ڈی کے مکمل ہونے تک
ये हमें बिजली फ्री देंगे, और ये प्रॉब्ली इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन प्रॉब्ली पाकिस्तान हिस्ट्री। कभी शायद ऐसा माजी में नहीं हुआ कि COD तक आपको फ्री बिजली दी जाए, होता नहीं है। तो ये एग्जैक्ट 3.9 बिलियन या तकरीबन 4 अरब रुपए की ये बचत है पाकिस्तान के खजाने को। और अगर इसको आप कंपेयर करें इसी तरह सबसे कि विद मार्जिनल कॉस्ट, तो कोल अगर आप कोल बेस्ड आप पावर जनरेट करें या RFU बेस्ड पावर जनरेट करेंगे तो ये 9 अरब रुपए की बचत है। यानी मतलब कहने का ये है कि 720 मेगावाट बिजली जो पन बिजली पैदा होगी, अगर उसको पैदा किया जाता थ्रू कोल बेस्ड पावर जनरेशन और फर्नेस ऑयल और डीजल व्हाटएवर बेस्ड पावर जनरेशन, तो वो फिर 9 अरब रुपए की बचत है उसके मुकाबले में। यानी कंपैरिजन जो है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, नंगलियाल है राइट, ये मार्जिनल कॉस्ट की बुनियाद पर, तो नेट सेविंग 4 अरब रुपए की और मार्जिनल जो कॉस्ट की बुनियाद पर 9 अरब रुपए की सेविंग है। ये है वो पाक चीन दोस्ती जो हिमालय से भी ऊंची है और गहरे समुद्रों से भी गहरी है और शहद से भी मीठी है, और वी आर आयरन ब्रदर्स। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो ये नेट 4 अरब रुपए आज बचाकर मैं आज रात में बहुत गहरी नींद सोऊंगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान गरीब मुल्क के 4 अरब रुपए बचे हैं। ये है वो खिदमत का वो जज्बा जो कि हम सब में होना चाहिए। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, कौम को तकसीम किया जाए, धरने दिए जाएं, याद करें जब वो वक्त, मुझे आज भी जब वो वक्त याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2014 में जब इसी मंसूबे को ऊपर उसको इंक करने के लिए सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान सितंबर 2014 में तशरीफ ला रहे थे, तो धरनों की वजह से वो दौरा मौखर हो गया। बेपनाह उनकी मिन्नत समाजित की गई कि खुदारा 3 दिन के लिए आप धरना छोड़ दें डी चौक से, ताकि प्रेसिडेंट शी का दौरा मुकम्मल हो जाए और फिर आप अगर दोबारा बैठने तो आपकी मर्जी। उन्होंने PTI ने, इमरान खान ने ये हम अपनी जिद पे अड़े रहे, अपनी हठधर्मी पे अड़े रहे और नतीजतन वो दौरा मुअख्खर हो गया, जिससे अगर ये मंसूबा वो सितंबर 2014 में अगर इसके ऊपर दस्तखत होते तो आज 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो गया होता और 720 मेगावाट बिजली मुहैया कर रहा होता। ये है वो बेपनाह नुकसान पाकिस्तानी मईशत को जो इन धरनों की वजह से पहुंचा। आज जब मैं इसकी विजिट पे आया हूं तो फिर वो धरना के लिए तैयारी की जा रही है। मैं समझता हूं कि क्यों, यानी मईशत जो डूबी मईशत जो 3.5 साल में आपने हमारे हवाले की है, इसको हम दोबारा हम इसको तवाना करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 40-45 दिन की यह हुकूमत है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपने जो महंगा तेल, जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल है, पेट्रोल है, उसको सस्ता करके आपने एक बारूद की सुरंग हमारे लिए छोड़ी है और हमने कौम को ये इजाफी जो बोझ अभी तक नहीं डाला। IMF से नेगोशिएशन जारी हैं, आपने मुआहदा किया, आपने वॉयलेट किया। आज अगर हम चीजों को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये धरने, फिर ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये जो बिल्कुल पूरी तरह तहबाला कर दिया गया, उसको ठीक करने के लिए शबाना रोज मेहनत, कोशिश और दिन रात मेहनत जो दरकार है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। तो मैं समझता हूं कि वाहिद रास्ता है कि आप मेहनत करें और माजी की गलतियों से हम सीखें, धरनों का धर्म तख्ता करें और पाकिस्तान को धड़ल्ले के साथ दिन रात कोशिश करके पाकिस्तान की तामीर करें कि फिर हम भी अक़वाम आलम में एक इज़्ज़त और वक़ार के मकाम के साथ हम आगे बढ़ें। तो आज मैं once again, Chairman Wu, I am very grateful to you and to your team for joining us today during this visit to
Karod project, which is a wonderful project. I've gone through important, works here. I've seen the tunnel, I've seen the turbines, and here we are. And I think it's a great work done by Three Gorges, and this part of the project being part of CPEC is another addition, and I have no doubt in my mind that there will be many more such hydel power projects we will build through joint cooperation, and this friendship between China and Pakistan will further strengthen, and we will move forward, making Pakistan a progressive and prosperous society in time to come. I think this is a moment for me to thank you, and I've seen your face through the screen. I'm very happy to see your face after many years. We'll part today to meet again. I thank Chinese team for this wonderful work. I thank Pakistan, WAPDA, and all WAPDA's experts and officials and government officials, secretary and other experts and the ministers. Let's today resolve and make this iron resolve through these two iron brothers, that we shall not waste a moment to further cement our friendship, our brotherhood, and like what China has become, the second largest economy around the globe, nothing only through hard work and dint of hard work and untiring effort, sacrifice, and of course through modern technology and technique, and of course through wonderful innovations. I have visited Three Gorges, 22,000 megawatts at one place. It's a remarkable piece of world's wonders, honestly, and it has been done and achieved through your wonderful work. So I am also aware of the fact that apart from Karod, you are also undertaking Kohala, which is 11 and 24 megawatt project. You are also undertaking Mahal, 640 megawatt project. All told, 2,484 thousand hydel power project. It's a great contribution to Pakistan's power network, and I thank you for this. And I remember that for this Karod, I focused sharply to ensure that land acquisition, which was a very, very difficult and devilish problem, we were able to achieve land acquisition in a remarkable period of time in a very transparent fashion. And I think this was a small contribution I could do as Chief Minister of Punjab at that point in time. And I think let's march with unity and thought of action, and I'm sure we'll be there somewhere down the line where China is today. It is easier said than done, but Chinese model we have to emulate, and with your support, we don't want handouts or free lunch. We want to work hard. We want to work hard, and we want to work hard, and we want to stand on our feet one day soon with your support. Thank you once again. Shishi, Pak Chin Dosti, Zindabad, Pakistan-China friendship, Zindabad. I'd like to make an announcement here as the Khadam of Pakistan. बतौर खादम पाकिस्तान मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि इस आबी मंसूबे से जो वाटर चार्ज, how do you call it, water charge, the share of water use charges, जो पानी के इस्तेमाल के जो चार्जेस हैं, उससे सूबा पंजाब को और आज़ाद कश्मीर को 1.2 अरब रुपए की सालाना आमदन होगी। तो मेरी ये आज पंजाब हुकूमत को भी मेरी दरख्वास्त और आज़ाद कश्मीर से भी कि आप मिलके इस इलाके की बहबूद, खुशहाली और तरक्की
यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी ज़मीनें जो आबा व अजदाद की ज़मीनें थी, वो इस एक अजीम मंसूबे के हवाले के नज़र की आप डिसलोकेट हुए और आपकी यहाँ पर तरक्की, इलाज, मुआवजा और आपकी तालीम और आपकी जॉब्स के लिए और आपके इलाके की खुशहाली के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करें और वसाइल जो हैं उसको खर्च करें। तो लिहाजा ये जो 1.2 अरब साल की जो आमदन होगी पंजाब को और AJK को, उसका सिर्फ 10%, सिर्फ 12 करोड़ रुपया साल का वो इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होगा इंशाअल्लाह। और ये अगले 30 साल तक चलेगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 12 करोड़ रुपया ज़रबे 30 साल ये बन जाएगा। आप फिक्र न करें, 3-4 अरब के करीब यहाँ पहुँचेगा। तो 3-4 अरब रुपये खालिस्तन 30 साल में यहाँ पर खर्च होगा। सालाना औसतन 12 करोड़ रुपया। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और शौक़ और ज़ौक़ दे कि हम पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर खिदमत करें और कौम को तकसीम ना करें, कौम में जहर ना भरें, कौम के अंदर गाली गलोच को हम बदल दें गुलदस्तों के साथ और गुलों के साथ गाली गलोच को दफन करें। कि अगर हमारी रवश यही रही तो फिर तारीख़ की किताबों में खुदा न खास्ता हमारा नाम ना होगा। मैं इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह जल्द यहाँ पर इफ्ताह के लिए हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। मैं पाकिस्तानी कौम को आज 4 अरब रुपए के नेट का तोहफा जो ख़जाने को पहुँचेगा, फ़ायदा पहुँचेगा, उसकी मुबारकबाद देता हूँ कि 75 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान कायदे आज़म, पाक चीन दोस्ती, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। गॉड ब्लेस यू। करोट में वजीर आजम या शहबाज शरीफ चीनी मीटिंग कर रहे थे। उनका कहना था कि 1 बेल्ट 1 रोड चीनी सदर का विजन है। चीनी सदर और नवाज शरीफ ने 2015 में मंसूबा शुरू किया था। पिछली हुकूमत के पास अपोजिशन के खिलाफ फकत वक्त था, दीगर मंसूबों के लिए नहीं था। इमरान के पास ऐसे मंसूबों के लिए वक्त नहीं था। वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क में हुकूमत को हमने आईनी तरीके से तब्दील किया है और ये मंसूबा गुज़िश्ता दौर में ताख़ीर का शिकार हुआ है। मंसूबा जल्द मुकम्मल करना हम चाहते हैं। करोड़ हाइड्रो पावर मंसूबा माहौल दोस्त है और इस हाइड्रो प्लांट से 720 मेगावाट बिजली बनेगी। मंसूबे से मुल्क को 4 अरब रुपए की बचत होगी। उनका यह भी कहना था कि कर्ज की अदायगी के साथ बिजली की कीमत कम होगी और चीनी कंपनी कमर्शियल होने तक बिजली मुफ्त देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त चीनी मीडिया से करोट में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 बेल्ट 1 रोड चीनी सदर का विजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी सदर और नवाज शरीफ ने 2015 में मंसूबा शुरू किया था। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली हुकूमत के पास अपोजिशन के खिलाफ वक्त था, इमरान के पास इस मंसूबे के लिए वक्त नहीं था। मुल्क में हुकूमत को आईनी तरीके से तब्दील किया गया। ये मंसूबा गुज़िश्ता दौर में ताख़ीर का शिकार हुआ। मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करोड़ हाइड्रो पावर मंसूबा माहौल दोस्त है। करोड़ हाइड्रो प्लांट से 720 मेगावाट बिजली बनेगी। मंसूबे से मुल्क को 4 अरब रुपए की बचत होगी। कर्ज की अदायगी के साथ बिजली की कीमत भी कम होगी। चीनी कंपनी कमर्शियल होने तक बिजली मुफ्त देगी।